हेलो बच्चों, वेलकम टू पैशन फॉर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, दिस वन is our lecture number 6 on the chapter 3rd, current electricity. In our previous lectures we have already discussed about the current density, resistance, resistivity, temperature dependence of resistance and resistivity, and in our last lecture we have discussed about carbon resistors. Okay, so today we will discuss about the Ohm's law. You have already studied this particular topic in your 10th standard. And in 10th standard you have discussed only about the scalar form of Ohm's law, but in 12th class you will come to know about the vector form of this particular law. What this law states? This law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of that conductor. Let us say this one is our conductor, and if we apply a potential difference across the end of this conductor, let us say we are applying a battery here, and due to this battery V potential difference is available on across the end of this conductor. So as a result of which I current is flowing across this conductor. So Ohm's law states that this current I is directly proportional to V, that is applied potential difference, or V is directly proportional to I. तो जो आपके पास ओम्स लॉ है वो क्या कहता है कि इफ अगर हम जो है हमारा जो एक कंडक्टर दिया हुआ है और इस कंडक्टर के अबाउट हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करें, तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के. ओके, वी कैन रीराइट दिस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Okay, and this is also known as resistance. So V upon I equal to R. This one is Ohm's law. Okay, तो ये हमारे पास क्या था? ये Ohm's law था. अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो हमने यहां एक चीज और डाली है. What is that thing? Provided physical conditions of the conductor such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. Ohm law आपके पास एप्लीकेबल तभी होगा जब हमारी ऐसी फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ हमने देखा था कि जो देयर इज अ वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, सो इट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ओम्स लॉ दैट टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट. ओके, नोट इट. Now if we plot a graph between V and I, if I plot a graph between V and I, let us say I is on x-axis and V is on y-axis. If I plot a graph between V and I, that must be a straight line, that must be a straight line, and slope of this graph, let us say this one is our slope of this graph will give us the value of R, that is resistance. It is clear from this equation कि जो आपके पास ये ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है इसकी जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी. ठीक है, इन योर बुक्स दिस ग्राफ मे बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म. लेट अस से दिस V इज अलोंग x एक्सिस एंड I इज अलोंग y एक्सिस. ओके, अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से दे रखा है तो आपके पास जो ये स्लोप है, देन दिस स्लोप विल गिव द वैल्यू ऑफ 1/r. इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है स्लोप की वो क्या होगी? 1/r होगी, बिकॉज वी नो दैट स्लोप किसके इक्वल होती है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. इस केस में जो आपके पास है I ऊपर होगा, V नीचे होगा. इट मींस दैट 1/r के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर इस टाइप से आप ग्राफ प्लॉट करते हो V के अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग अगर हम करंट लेते हैं, देन द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ 1/r. बट इफ वी प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस वन, that along x-axis we consider the current and along the y-axis we consider the potential difference, then slope of this particular graph will give the value of resistance. Okay, अच्छा, एक मेन चीज और आपके पास जो यहां है वो ये है कि यहां हम एक बात कह रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मटेरियल के लिए जो ये रेजिस्टेंस है इस फार्मूले में वो कांस्टेंट ही रहे. इट मींस दैट
ऐसे कुछ मटेरियल हैं दैट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दे आर नोन एज नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो ऐसे जो मटेरियल हैं जो फॉलो नहीं करते हैं ओम्स लॉ को, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ठीक है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ये हम तब बात करेंगे जब हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन की बात करेंगे, तब हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा वहां पे लेटर ऑन। ओके, तो चलो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि जो ये ओम्स लॉ है ये आया कैसे है, यानी इसका प्रूफ देखते हैं। सो हेडिंग डालो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ। Okay, in the very first lecture of this unit, we have derived an expression for drift velocity, that is Vd equal to E tau upon m. Also, we have derived an expression between current and drift velocity, and that was equal to I equal to A n E Vd. Let us say this is equation number 1 and this is equation number 2. Now, put the value of 1 in equation number 2. That is from equation 1 and 2. What we get? Put the value of Vd from equation number 1. I must be equal to A n E. E tau upon m. Right? We can rewrite it as A n E square E tau upon m. Okay, we also know that electric field E equal to V upon L. Let us say this is equation number, let us say this is equation number 4 and this is equation number 3. So put equation number 4 in equation number 3. Put equation number 4 in equation 3. What we get? I must be equal to A n E square V upon L E tau upon m. Okay, so this is the relation. ओके, नाउ आई को राइट साइड में ले जाओ, यानी वी के नीचे, और बाकी सारे के सारे जो आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। सो दिस बिकम्स ए एन, दिस बिकम्स वी को साइड वी अपॉन आई, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ इनटू ए। ओके, सो हेयर एम, व्हाट इज एम? एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन which is a constant quantity. n क्या है? number density of free electron, number density of free electrons, that is also a constant quantity if temperature is constant. It is also constant if temperature is constant, and we are saying that Ohm's law is applicable on constant temperature. तो हमारा temperature constant है, it means that n is also constant. Next L, length भी constant होगी if temperature is constant. लेंथ क्या है? कांस्टेंट है. फोर्थ वन, लेट अस से ई है आपके पास, ये दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ये वाली क्वांटिटी जो आपके पास लेंथ थी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. नाउ टो, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट टो यानी रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. Okay, and last A, that is area of conductor, area of cross section, that is also a constant if temperature is constant. It means that all the quantity in the right hand side are constant one, and let us say this constant is R. So V upon I equal to R. This one is Ohm's law, or V equal to IR. यही हमारा क्या है? यही है हमारा Ohm's law. ओके, क्लियर? गुड. साथ के साथ नोट कर लो इसको. इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन मोबाइल देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी? वेक्टर फॉर्म की, जो कि आपके पास न्यू टॉपिक है 12th क्लास के लिए, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा था ये, है ना. अब ये कुछ नया सीख रहे हैं मुझसे थोड़ा आगे. That is J must be equal to sigma E. This is vector form of Ohm's law. क्या बोलते हैं इसको? Vector form और microscopic form
और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हमें निकालना है दैट J इक्वल टू सिग्मा E, वेयर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. We have derived this expression in our lecture number 4 when we have studied about resistance and resistivity. Next one is R equal to rho L upon A. This one is our first equation. According to Ohm's law, V equal to IR. ये scalar form थी हमारी. So put equation number 1 into, put equation 1 into what we get? V equal to I. R की वैल्यू क्या है? Rho L upon A. राइट, L को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं. V अपॉन L इक्वल टू रो I अपॉन A. राइट, नाउ वी नो दैट V अपॉन L इक्वल टू E. रो I अपॉन A, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया. इट इज करंट डेंसिटी. ओके, नाउ वी नो दैट रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, E इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू J, और J इक्वल टू सिग्मा E. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो J इक्वल टू सिग्मा E. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. क्लियर? नोट करो इसको. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ? हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, देखो अभी जो हम बात कर रहे थे, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था दैट V इक्वल टू आई आर, यहां पे हमने ये कहा कि जो रेजिस्टेंस आपके पास यानी R है दैट इज कांस्टेंट. Okay, we have derived the expression that V equal to IR and we are saying that R is a constant quantity. R is constant. But it is not the case. क्योंकि जैसे जैसे अब एक समझने वाली बात यहां पे ये भी है कि जो ये ओम्स लॉ है वो कहां पे एप्लीकेबल है? सिर्फ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल ओनली एट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, जब करंट स्मॉल है सिर्फ तभी आपके पास एप्लीकेबल. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि जैसे जैसे आपके पास लेटर से करंट बढ़ रहा है तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट कम्स इनटू द पिक्चर. अब जैसे हीटिंग इफेक्ट आ गया, इट मींस दैट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल राइज अप. और वी हैव अर्लियर shown that due to the increase in temperature the resistance of the conductor also varies. It means that जैसे जैसे I increase हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट पिक्चर में आया, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा कंडक्टर का. तो इस केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हुआ, बट हमने तो ये कहा था कि जो R है वो कांस्टेंट होता है किसमें? ओम्स लॉ के लिए, है ना. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आई आर वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंगली I की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और R हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओम्स लॉ ये कहता है. बट ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनके केस में इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ I, अगर मैं V की वैल्यू इंक्रीज करूं तो अकॉर्डिंगली I की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट R कांस्टेंट नहीं है. इट मींस दैट इफ द वैल्यू ऑफ V or I changes for a material, then R does not remain constant. These kind of material are known as non-ohmic devices or non-ohmic material. तो ऐसे जो आपके पास मटेरियल हैं या डिवाइसेस हैं उनको हम कहते हैं non-ohmic devices. ये कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन से मटेरियल हैं? ये वो मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ. ठीक है, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ. और वो मटेरियल्स जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, दे आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस और ओहमिक मटेरियल. ठीक है, तो ये बात थी आपके पास. तो ये लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की
कि हाई जब करंट आपका हाई हो जाता है तो यानी हाई टेम्परेचर पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इसका मैं अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, सो अर्लियर वी हैव plotted a graph between V and I and it was a straight line passing through the origin. ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था, बट जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा देन दिस ग्राफ विल नो लॉन्गर रिमेन अ स्ट्रेट लाइन, रादर इट बिकम्स अ कर्व। ठीक है, एक कर्व बन जाती है, दैट इज V वर्सेस I। ठीक है, दिस वन इज फॉर ओहमिक डिवाइसेस, दिस वन इज फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओके, अच्छा, अब काफी सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि ओम लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लिया? गुड। देखो, जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते इवन एट स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। जब करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी टेम्परेचर काफी कम है, तब भी वो फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को। ठीक है, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर सेमीकंडक्टर्स, देन द ग्राफ विल जस्ट लाइक दिस। दिस वन इज फॉर फॉरवर्ड बायस एंड फॉर रिवर्स बायस इट विल बी लाइक दिस वन। ठीक है, आप ये 9th यूनिट में पढ़ेंगे, जब हम 9th यूनिट करेंगे, दैट इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस वन इज फॉर रिवर्स बायस। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि जो ओम्स लॉ है वो हर एक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे कुछ मटेरियल हैं जिनके लिए वो एप्लीकेबल है, बट वो भी सिर्फ तब जब आपका टेम्परेचर यानी करंट जो आपके पास है उसकी वैल्यू काफी कम है, क्योंकि करंट की वैल्यू कम है मींस टेम्परेचर कम है, और जब तक टेम्परेचर कम रहेगा तब तक आपके पास R एज ए कॉन्स्टेंट होगा। बट जैसे जैसे वैल्यू करंट की इंक्रीज होगी तो उसके साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर R विल नो रिमेन कॉन्स्टेंट। Then in that particular case V directly proportional to I or V equal to IR, but R is not a constant. Those material are non-ohmic materials. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE एग्जाम में वो आता है J इक्वल टू सिग्मा E को ड्राइव करना। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।